Ever feel like you are drowning in sea of writing tips, yet the path to actually making money from your words remains in mystery? It's a common struggle. Imagine this. You are not just learning to write, you're uncovering the secrets to turn your words into a sustainable income in just 6 months. But here's the catch. This is not your online typical course. I'm not here to sell you overpriced dreams or questionable schemes. What I offer is a step-by-step journey guided by one-on-one mentorship for free to ensure you not only master the art of writing but also start making money. The problem is many writers out there sell you the dream without offering a practical roadmap. They are experts at selling writing tips but often forget to take you beyond that. Now, in the age of AI and booming creator economy, writing is not just undervalued. It's a golden ticket to your success when coupled with sales and marketing. Yet, let's be real and honest. Sticking to a writing pen for months can be a daunting task. The good news? I am here to make it seamless with my free mentorship, exclusive newsletter just for my subscribers, and a promise. Follow my guidance, write online for 6 months, and watch the money flow in. Don't miss out on turning your passion into a profession. Time to write your future. Are you in? Hi everyone, my name is Shishir Wadhvan and I create these videos to learn. And I believe that teaching is the best way to learn. Here I learn and grow and document everything, and you, my friend, can watch these videos and start learning and growing with me. Today, we are learning how to write online and start making money in just 6 months if you stick to the plan. So enjoy. Rules of the game, what it means. So consider online content creation as a game playground. Any kind of content you create, whether it's video, writing, entertainment, education, any kind of content, you are playing the online game. So in the arena of online game playground, you are playing the game of writing, and to play any game, you must know the rules of the game. And today, if you are willing to play the game of online writing, I'm going to tell you specific rules you have to keep in your mind while playing this game. Because if you know the rules and if you follow the rules, someday you will be able to create your own rules. Rule number 1, right intention. What it means. Now, I started with this video with a promise कि आप 6 महीने में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, या जितना भी कमा रहे उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे, और अभी बिल्कुल नहीं कमा रहे तो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे. लेकिन what should be your intention right now when you are going to play this game? Your intention should be learning. Why your intention should not be earning? Because if you have intention to just learn and get better, you will earn a lot of money. That's irony. If you have intention of earning money, you will not earn money, because now your intention is your driving factor. It drives you. So if your driving factor is learning, you will always be learning. Even if the odds are against you, but you want to learn, you will learn. Take an example of a boy who can't go to school but wants to study. और उसके घर वाले वो पैसा नहीं दे सकते पढ़ाई के, ट्यूशन के, स्कूल के नहीं दे सकते, but he wants to study. He is so interested in reading. So sometimes you see him reading newspaper, books, some borrowed books. He always reads because he is derived by learning. He's not derived that some days I will become this. He may have a dream, but what he is being driven by? He is being driven by the desire of learning, the intention to learn. So similarly, I really want you to have the intention to learn. I'm not saying that don't care about money. I'm not saying that you won't earn money. What I am saying is that this is how the game is played. You must have the intention to learn, and then you will be able to earn. Now, what if you... And now, वो चीज़ बिल्कुल मत करना कि just because तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए सीखने का, तो तुम खुद को झूठ बोलो कि अंदर से इंटेंशन अर्निंग का ही है, लेकिन तुम बाहर कोई पूछ रहा है तो बोलो नहीं, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, आई एम लर्निंग. डोंट डू दैट. डोंट एवर डू दैट. It all starts from here. What things are at your core? What values are at your core? You will be identified. People will identify you. Even if you think that I can make him fool, you will be able to make some people fool. But if some expert or if someone who is experienced comes in front of you, वो तुम्हें दो चुटकी में पहचान लेगा that you are lying. So always think what it at my core, what I really think. For example,
हमें लोगों हम क्या कहते हैं कि हमें, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई लव दिस एग्जाम्पल, कि हम क्या कहते हैं कि हमें इस लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट असल में हमें पड़ रहा होता है बहुत चीज़ों से फ़र्क। सिमिलरली, डोंट लाई टू योर सेल्फ कि मुझे फ़र्क नहीं, मैं आई एम लर्निंग, आई एम नॉट have the intention of earning, but inside you know that at the core you have the intention of just earning money. It should be there. Should you not have intention of earning money? You must have. But when you are playing the game, your driving factor should be learning, because you are a beginner, right? So always have the right intention of learning, and I promise you, you will make money. Rule number 2, consistency is key. अब इसको मैं जितनी बार भी बोल लूं, आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो शायद शायद नहीं, आई गारंटी इट, कि ठोकर लगने पर सीखते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ. I made a complete video on my content creation mistakes. I have spent my 1 year, invested a lot of time, made a lot of mistakes. I created a video, and number one mistake, of course, the inconsistency. हर कोई तुम्हें, the best strategy to grow on any platform is consistency, but we fail at it. We don't have systems how to create content. We are not derived by the right intention. We don't want to do it, and we always have some excuse कि हम consistent क्यों नहीं हो पा रहे हैं. So before playing any game, or before playing this game of online writing, just keep in your mind, चाहे तुम कुछ भी excuse दे दो, because मैंने भी बहुत excuse दिए, at the end मुझे समझ आया that I, चाहे कुछ भी हो, I have to post my content. If you are really playing the game seriously, there is a difference between a serious player and a fun player. Of course, for example, you just play cricket for fun, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ सीरियस प्लेयर जो कि पूरे साल मेहनत कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, डाइट अच्छे से ले रहा है, फॉर टू विन और टू प्ले द गेम, राइट? So you have to decide that, are you willing to play this game seriously, or you just want to have fun? So if you want to have fun, maybe this video will not be for you, because this might make really long videos. If you want to have fun, I think this video is not for you. But if you want to be a serious player, if you want to be serious at this thing, you have to be consistent. And it's okay. You will fail. You will fail being consistent. Just tell yourself. For example, for 1 week you didn't post anything, and on the 7th day you are having that shots of insecurity, doubt that will I be able to do it or not. Then listen, my friend, it's okay. It's 7th day, post it. 8th day, post it. Again, you failed for 2 days. It's okay. 3rd day, post it. This is how you win. What mistake I did, that अगर 7वें दिन मुझे insecurity doubt हो रहा है, then I am not posting anything. I'm just procrastinating, just thinking about it, and or switching to the different opportunities. So this was my major mistakes, and I don't want anyone to do it. If he's watching my channel, or if he's my loved ones, or if someone, or someone who know me, who wants my help, I would never want him to do this mistake. So please don't do this mistake. Be consistent. Rule number 3, discipline. And consistency and discipline are interlinked to each other. Why? Because you can't be consistent without discipline. So you have to build the discipline. And by discipline, I don't mean just being consistent with your content. I'm saying be disciplined in all the spheres of your life. For example, you want to go to gym, or you want to go to park to exercise, go for it. Make some time and go for it. Be disciplined. Be disciplined with it. What I mean that कि हमारे पास हर ऐसी कोई ना कोई चीज होती है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, या हमारे पास है कि हम करेंगे बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर डिलेइंग इट, वी आर अवॉइडिंग इट. हमारे सब, बहुत हर किसी में होता है कि कुछ ना कुछ चीज करनी है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन. हम खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं दैट वी डोंट हैव टाइम. So please, my friend, if you have anything in your mind that you want to do, but you are avoiding it because of X, Y, Z reasons, so kill those X, Y, Z reasons and do that work. Without discipline and consistency, you can't win the game. Rule number 4, execution is where magic happens. If you're watching this video is going to be long. For example, you didn't watch this video. It's okay. For example, someone watched this video, an hour long video or 2 hour long video, and he didn't do anything.
or he just scrolled Insta, or he just scrolled Twitter. He just thought, okay, I will do this, कि ना सोच लिया कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, but he at the end he didn't do anything. He didn't post anything. He didn't write anything. He didn't implement anything. He didn't execute anything which he heard from this video. So the magic won't ever happen. And it's not magic. Why I'm calling this magic? Because when you execute, you get something in outcome which you have never ever thought of. कुछ ऐसा मतलब हमने सोचा नहीं होता कि because that's where magic happen. When you being consistent, when you implement, execute, you see that okay, I'm getting better. Okay, these responses are good. This is the thing I was looking for. You get a lot of realizations. You get new way of thinking. You get new way of doing the things. You eventually find your own style of writing, your own voice that which makes people follow you. So that's why I say that execution is where magic will happen. So if you can execute, not just this with this video, anything, any kind of information content you are consuming and you are not executing, same like trash. You are just keeping with you. You are not executing. It means you are बस झोला भर रहे हो कि मेरे पास ये है. बस वो ज्ञान दे सकते हो किसी को या दो बातें कह सकते हो ज्ञान की और खुद को तुम I heard this thing from Alex and Mozi की you I don't know the exact word but इसकी जो summary है वो ये है कि you can't become best or you don't become best by shouting affirmation in front of mirror, meaning कि तुम शीशे के सामने खड़े होकर कह रहे हो that you are the best, I'm the best. You won't become best that way. How you become best? By having a set of proofs जो ये कहते हो कि तुम best हो. You are not saying you are the best. Those proofs are saying. So आपके क्या proof होंगे? The consistency, the discipline and the execution. जब हमको दिख रहा होगा तो वो एक प्रूफ बिल्ड कर रहे होंगे दैट सबसे पहला प्रूफ तो यही बिल्ड हो जाएगा दैट यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट राइटर एंड ट्रस्ट मी there is again another thing coming to my mind by Alex Ramosi, and he said something like the a focused fool can beat a distracted genius. So you have to be focused and you can beat the genius. And trust me when I say, because I've seen myself, there are a lot of geniuses out there who are distracted. Or there are people who thinks they are genius plus they are also distracted. So if you become focused, I'm not saying you are a fool. I'm saying you are something. Just start becoming something, meaning start getting better, add focus with it, and you will be amazing. You will do a lot of good things. You will stand out in the market. So that's why always remember execution is something so important because there you feel the magic happening. There you feel the transformation of your life. Number 5. Enjoy and love the process. अब ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और आसान भी है. लोग ये कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए. और ये मैं पहली बार कोई ये बात नहीं कह रहा, और लोगों ने भी कही है कि प्रोसेस से प्यार करो, आउटकम से मत करो, बिकॉज दैट्स हाउ यू विन. बट होता क्या है कि हमको ना हवस या उसकी होती है उस आउटकम की हमेशा, कि ये चीज़ हमें आउटकम की तरह. इसलिए मैंने कहा आउटकम तुम्हारा हमेशा मनी नहीं होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए. बिकॉज for the coming 6 months you won't earn anything, but daily you will learn something, so you will be happy. That's why I said even if you will become outcome oriented, I have created a mindset in you that even if you are attracted to the outcome, your outcome should be learning. Okay, coming back to the thing that how to fall in love with the process, because we say we are in love with the process, we are not. Again, we are just lying to yourself. We are lying to ourselves to fit in that group of successful people, or to fit or to acquire the trait of successful people that okay, we are not, हमें process से प्यार है, उससे नहीं है, goal से नहीं है. But in reality we love process, we love outcome, right? So इसका मतलब क्या है? What does it mean to fall in love with the process? For example, there is a girl you love. What would happen? Do you think it will be easy? It will be so painful. What's the meaning of love? It means that you will have to go through sufferings. Of course, it means all those beautiful things, but right now I'm talking the important part, which is sufferings, pains, tears. And even if there is pain, sufferings, tears, insecurities, even sadness,
You still choose the love. You still choose to be in love with that girl or with that boy. Why? Because of love. You endure that pain because you are in love. And when you start writing online for the coming 6 months, you are going to be in pain. You are going to feel insecure. You are going to feel sad. You're going to have doubts. And when you will have that, in that moment, you will show to yourself or to the universe that do you really love this process or not? Because if you really love that process, you won't leave that process in between. Similarly, when you are with a girl and you started seeing the challenges with that girl, or challenges of the love, which always happens, and what would you decide? Will you live? Will you leave that girl in between, or will you leave that boy in between, or you will choose to struggle with her, to 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 fight as a team against all the problems, all the challenges? What would you do? If you say that I would leave her in between, it's okay. I won't judge you. It's your decision. It's your life. And what would you say if I ask you that will you leave writing online in between if you feel that pain? If you say yes, I will leave the writing in between, it's okay. Again, I'm not gonna judge you. You can stop watching that video because it won't help you. But if you can say, and वो अंदर से आवाज आ रही है that yes, I won't leave. I'll be here. Even if it pains me, even if it worries me, even if it saddens me, even if it creates the self-doubts in me, I will still choose to write online. Then great. You are falling in love with the process, or you have madly fallen in love with the process of writing. Congratulations if you think this way. Rule number 6. Nobody wants to read your shit. And it's a book title also by Steven Pressfield. So इसमें जो राइटर है वो यही कहना चाहते हैं कि कोई भी तुम्हारा लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहता है, मीनिंग नो वन केयर्स. Because we as a writer think that when we'll start writing, people will read it because हमको लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा होता है. I can confirm this as a writer कि हमने जो भी piece of writing लिखा होता है, fiction, non-fiction, we love it. We definitely love it and we think the people would love it. But it's not true. Let's face it, it's not true. They don't love it. They don't even care. And it will happen to you. And why you should think about this, or why you should feel. Why you should not feel always happy about your writing even though it sucks. You should be happy that you are trying, you are doing the work, you are putting the content out, but you should not be flattered by your writing. Because when you understand, there is a quote in the book, I don't know the exact word, but it says that when you understand this, nobody wants to read your shit, you acquire the ability to switch back and forth in your imagination from your own point of view as a writer or seller to the point of view of your reader or customer. It means that when you have this ability, when you understand कि कोई तुम्हारा content नहीं पढ़ना चाहता है, तो हम एज अ राइटर उसे पसंद कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन समथिंग एंड आई एम लविंग इट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई एम लविंग माय राइटिंग बिकॉज इट्स माय पीस. आई हैव क्रिएटेड इट. वी लव आवर क्रिएशंस. एज अ राइटर आई एम लविंग इट. बट what is the game? What is the rule, or what is the game? You don't need to see this as a writer. You have to see as the audience of this writing piece. Because I'm not going to keep it with myself. I'm going to put it out for the people out there. So what's the intention of this piece of writing? Is to make me happy, make me flattered? No, it's the intention. The intention of this writing piece should be the audience, because the audience is going to read it. हमें इस तरीके से लिखना है कि ऑडियंस को वो चीज़ समझ आए. हमें ऑडियंस की नज़र से, ऑडियंस के कहते हैं ना, वी हैव टू बी इन द शूज़ ऑफ आवर ऑडियंस. हमको ऑडियंस की नज़र से देखना है कि डू दे रियली वांट टू रीड इट.
एंड हम ये कैसे करें? तो इसकी सिंपल ट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल कि उसको थोड़ा टाइम दे दो। जैसे आपने कुछ लिखा है एंड यू आर लविंग इट, यार कितना प्यारा लिखा है ना, ओके, उस टाइम जो व्हेन यू आर फीलिंग इट कितना प्यारा लिखा है, embrace yourself, celebrate it for some minutes, then keep that piece of writing. If you write on paper, कहीं रख दो. If you write on Google Docs or any other tools, पीसी या लैपटॉप बंद कर दो एंड जस्ट गो फॉर स्लीप, गो फॉर वॉक. कम से कम 6-7 घंटे बाद दोबारा से वो पीस ऑफ राइटिंग देखो जो भी तुमने लिखा है. यू विल सी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. सी इट विद द लेंस ऑफ अ ऑडियंस, नॉट ऑफ अ लेंस ऑफ अ राइटर. तो अभी हमने 6 रूल समझे. इसके अलावा भी और रूल्स हो सकते थे, लेकिन ये मेजरली 6 रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए. मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लेकर के इसे समझाया, जो कि बनता भी था इतना समय लेना, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है आपके माइंडसेट के लिए जब आप एक राइटर बनना चाहते हैं, और सिर्फ एक राइटर ही नहीं, एक राइटर जो अच्छा खासा पैसा कमाता है. सो अब हम जंप करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, जो है हाउ टू चूज नीश. अब नीश को कैसे चूज करें जब हम कुछ लिखने जा रहे हैं. तो पहली अप्रोच जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये है कि स्पेसिफिक हो जाइए. स्पेसिफिक यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू राइट. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट यू राइट, एंड यू से आई राइट अबाउट एनीथिंग. ओके, व्हाट यू लाइक टू राइट अबाउट. I like to write about fiction. No, come back. What you like to write about which solves a problem. Now, what is called specificity? This is called specificity. मैंने आपसे पहले पूछा कि आप क्या लिखते हैं, what do you write? You say, okay, and I say, what do you like to write? Okay, this is kind of, now I'm going a little bit specific. कि आपको लिखना किस बारे में पसंद है. देन मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हूँ अपने क्वेश्चन के साथ. वट यू लाइक टू राइट अबाउट विच सॉल्व्स अ प्रॉब्लम. अगेन नाउ आई एम गोइंग स्पेसिफिक, राइट. सो अब ये स्पेसिफिक होने का क्या फ़ायदा हुआ? आपने क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझा, और उसका आंसर भी अब स्ट्रीम लाइन होकर के मेरे पास आया. स्ट्रीम लाइन यानी कि बिल्कुल एकदम छटके कि हाँ ये चीज़ है. आप क्या लिखते हैं, आप किस बारे में लिखना पसंद करते हैं, आप किस बारे में लिखना पसंद करते हैं जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे. सो यहीं से शुरू करते हैं. अभी मैंने बस आपको स्पेसिफिक कैसे होते हैं ये समझाया, और अब ये समझाते हैं कि आप जब नीश चूज़ करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक जो टर्म है इसको आप अपने नीश पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो आपको ये चूज़ करना है. सबसे पहले ये समझ लीजिए कि योर राइटिंग शुड सॉल्व अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच पीपल फेस. नाउ विच पीपल फेस, हमें पीपल क्या है ये स्पेसिफिक नहीं हो रहा, हम पूरे सेंटेंस पे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ऐसे कि आई राइट फॉर द पीपल, आई राइट दैट सॉल्व्स पीपल प्रॉब्लम्स. बहुत बेसिक. कि सबसे पहले व्हाट यू राइट, क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन यू से आई राइट फॉर द पीपल, आई राइट दैट सॉल्व्स पीपल प्रॉब्लम्स, पहले राइट क्या क्या लिखते हो. पीपल, कौन पीपल, कौन है वो लोग, मुझे बताओ, स्पेसिफिक हो जाओ. क्या प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. अगेन सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि आपकी बहुत ही सिंपल जर्नल थी, आई मेड इट स्पेसिफिक बाय आस्किंग द 3 इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चंस. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ठीक है, आई राइट व्हाट आई राइट, व्हाट आई लाइक टू राइट अबाउट, और व्हाट आई हैव बीन राइटिंग. और इफ यू हैव नॉट राइटन एनीथिंग देन व्हाट यू लाइक टू राइट. यानी कि आप लॉन्ग लिखना पसंद करते हैं, यानी कि न्यूज़ लेटर लिखना पसंद करते हैं, या फिर आप शॉर्ट ट्विटर थ्रेड्स लिखना पसंद करते हैं, या लिंक्डइन का कंटेंट लिखना पसंद करते हैं, या इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिखना पसंद करते हैं, या स्क्रिप्ट्स लिखना पसंद करते हैं, या कॉपी राइटिंग यानी कि कुछ सेल्स ईमेल्स लिखना पसंद करते हैं, कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जिससे कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, उसको सेल करूं. क्या करना चाहते हैं, या क्या करते आए हैं, या थोड़ा बहुत किया है या नहीं किया, तो इन 4-5 चीज़ों में से आप क्या चीज़ करना चाहते हैं. यू विल से शिशिर नहीं आ रहा यार समझ, और लास्ट वाला तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि कॉपी राइटिंग क्या बोल दिया. इट्स ओके, हम लास्ट पार्ट में ये कॉपी राइटिंग समझेंगे. लेकिन अभी समझ लेते हैं कि आपको अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें, तो उसका एक उपाय ये है कि आप ट्विटर खोलिए और देखिए, 2-4 न्यूज़लेटर पढ़िए, लिंक्डइन का कंटेंट पढ़िए, तो आपको दिखेगा कि आप किस चीज़ को एज अ कंज्यूमर बहुत पसंद कर रहे हैं. अगर आपको ट्विटर थ्रेड्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, देन स्टार्ट विथ ट्विटर थ्रेड.
right? So it means you write Twitter threads. We are being specific. If you really like writing LinkedIn posts, so I write LinkedIn post, specific. If you again you are liking, if you want to write newsletter, I write newsletter. So you are seeing we are being specific. हमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया that I write, for example, newsletter. Okay, you are with me? I write newsletter for that solves people's problems. That solve पीपल कौन है? हम पीपल समझते हैं कि हमारा पीपल कौन है. पीपल मतलब लोग. किसके लिए हम न्यूज़ लेटर लिखना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है किसके लिए लिख सकते हैं. अब ये देखना है कि कौन लिखता है न्यूज़ लेटर. एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, फाउंडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इवन फिक्शन राइटर्स. सो अब इनमें से आप किसके लिए लिखना पसंद करेंगे. नाउ अगेन कि मुझे कैसे पता मैं किसके लिए पसंद करूँगा. सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू एडमायर इन. इसमें से आपको सीईओज बहुत पसंद हैं, या आपको फाउंडर्स बहुत पसंद आते हैं. उनके मतलब जो सोचने का तरीका है, एक पैटर्न जो है उनको आपको बड़ा पसंद आता है. आप फैसिनेटेड है. इंटरव्यूज़ आपको बड़े फाउंडर्स के देखने पसंद है, सीईओज के देखने पसंद है. ये एक इशारा है कि यू शुड गो विद दैट वन स्पेसिफिक पर्सन और दैट कम्युनिटी. दैट मतलब वो पीपल जो है उसके साथ जाना चाहिए. उस मतलब कि सीईओज जो हैं उनके साथ जाना चाहिए अगर आपको उनको सुनना पसंद है. तो फाउंडर्स का पसंद है, या फिर आपको यूट्यूबर्स देखने का पसंद है. इवन द एंटरटेनमेंट यूट्यूबर्स दे ऑल्सो हैव न्यूज़ लेटर्स. सो एंटरटेनमेंट कंटेंट देखना पसंद है, या आपको एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, वो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स पसंद है. ओके. और जो अदर राइटर्स हो गए इंस्टाग्राम पर, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो अगर राइटर हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइटिंग देयर ओन न्यूज़ लेटर्स. सो व्हाट विल यू चूज? सीईओज, फाउंडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स, व्हाट वुड यू चूज? सो चूज कर लो इसमें से कोई भी. कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई भी एक चूज कर लो जो तुमको थोड़ा सा चमक रहा हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स चूज कंटेंट क्रिएटर्स. ओके. नाउ कंटेंट क्रिएटर में स्पेसिफिक होना है एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है या फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर है. और स्पेसिफिक हो सकते हो तो हो जाओ कि फिटनेस कंटेंट क्रिएटर. दिस इज और स्पेसिफिक हो गया कि हम फिटनेस कंटेंट क्रिएटर. ठीक है. सो लेट्स से ओके फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हम स्पेसिफिक हो गए. तो हमने पीपल भी समझ लिया. हमने क्या लिखते थे? राइट आई राइट न्यूज़ लेटर फॉर फिटनेस कंटेंट क्रिएटर दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम. अब क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है? सो ओके न्यूज़ लेटर क्या सॉल्व प्रॉब्लम करेगा? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? मैं अगर मैं न्यूज़ लेटर लिख रहा हूँ, न्यूज़ लेटर अट्रैक्ट्स द ऑडियंस. ओके. it gives you your email list, your personalized email list, where the content creator will form a connection with him or with the audience. Okay. किस तरीके का कनेक्शन? बेसिकली जो यूट्यूब पर हमारा कनेक्शन हो रहा होता है वो हम किसी और के प्लेटफॉर्म पर कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे हमारे पास एक ईमेल आ जाता है और हम ईमेल पे वो हमारे ईमेल पढ़ रहे होते हैं तो एक है डायरेक्ट कनेक्शन है. तो हमें डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा. एंड इवेंचुअली जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपने प्रोग्राम सेल कर सकता है. इफ़ यू राइट गुड न्यूज़लेटर दे विल ऑप्ट इन फॉर द कोर्सेज, फॉर द वेबिनार्स. सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. लेकिन अब ये भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है. सो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस करना है. वो ये हो सकता है कि I write newsletter for the fitness content creators that turns their audience into customers. यानी कि अब ऑडियंस वो कस्टमर में हो जाएगी. बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग न्यूज़ लेटर यू आर प्रमोटिंग देयर कोर्सेज, वेबिनार, क्लासेज. सो जो एक ऑडियंस थी वो कस्टमर में बदल गई बिकॉज दे विल बाय द थिंग दैट फिटनेस कॉन्टेंट क्रिएटर इज सेलिंग बिकॉज यू wrote it in newsletter. This is how it became specific. I write newsletter for fitness creator that converts their customers into I'm so sorry. I write newsletter for fitness content creator that converts their audience into customers. Now write it in your bio. जब हम अभी बात करेंगे किस प्लेटफॉर्म पे लिखना चाहिए, तो जब हम प्लेटफॉर्म चूज कर लेंगे तो आपको ये चीज़ अपने बायो में लिखनी है. बिकॉज द मोर स्पेसिफिक यू आर द मोर मनी यू विल मेक. इनिशियली यही करना चाहिए. व्हाट इट मीन्स कि इनिशियली यही करना चाहिए, बाद में क्या चेंज करना चाहिए? लुक व्हाट हैपेंस इज व्हाई पीपल स्ट्रगल सो मच विद नीश. बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट. दे व्हेन
even if they are writers or video creators, they want to speak about everything. For example, I want to speak about marketing, sales, politics, government, and finance, and a lot of things I want to talk about, which I can't talk on this channel because I think the niche specific होना चाहिए. But no, you don't have to be niche specific. But initially you should be, because that's how you should play the game. इसका क्या मतलब है, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए. सिंपल ये फंडा है कि जब कोई भी हम शुरुआत करते हैं कंटेंट क्रिएट करने की, तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है. स्पेसिफिक जैसे ही हम होते हैं तो लोग हमको जानने लगते हैं कि अच्छा 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 ये है ये. जैसे हम लोग जानने लगते हैं, दे रिमेंबर आवर फेस, दे अंडरस्टैंड आवर ब्रांड, दे अंडरस्टैंड आवर वॉइस, दे बिकम आवर ऑडियंस, एंड अदर पीपल आर ऑल्सो अवेयर दैट दिस पर्सन एग्जिस्ट. Now everyone knows you. You can talk about different things as well. For example, Gary Vee started with wine, with selling wine. But today, do you know Gary Vee because of wine? You know Gary Vee because of Gary Vee, because he is Gary Vee. He's a brand. He talks about different things. If you talk about Joe Rogan, what is niche? He's also comedian. He also does different things, and he also talks about different topics. He talks about aliens, humanity, AI, and LGBTQ. He talks about all these things. So what he does, what is niche? He is the niche. Joe Rogan is the niche in itself. But initially, when you are starting out, you are a beginner, you want to make some money, you should be specific. When you will be in the game for 2 to 3 years, I think at that time you will become niche. You will become niche. Your name will be a niche. So ये आगे की बात बता दी बहुत ज़्यादा. वहाँ पर नहीं जाना, हमको अभी अपने 6 months पर फोकस करना है, जहाँ पर हम नीच स्पेसिफिक रहेंगे. एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू आर नॉट प्लेइंग दिस गेम alone. I am also going to play this game. My whole channel, as I said, that I document what I learn. So right now, I have created this 6 months master plan for me. And I'm sharing it with you because you can win it too. And for the next 6 months, I'm going to apply all this learning which I'm sharing in this video. Okay? And after 6 months, I will make another video to show that did I win or not? Did I lose? What mistakes I did? So if you are thinking कि मैं कोई ज्ञानी आदमी हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट आदमी है, मैंने लाखों करोड़ रुपए कमाए, of course I have worked with some copywriting clients, but ये जो इस तरीके का जो गेम है वो रूल समझ के इस तरीके से नहीं खेला. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम, एंड आई एम सो हैप्पी टू मेक दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज even if I fail or not, I want to do this. I want to record a video after some months. Maybe 6 महीने के बीच में भी कुछ वीडियो बना दूँ. If I learn something new, if I want to share. बट 6 महीने के बाद तो एक वीडियो ज़रूर बनेगी जिसके अंदर मैं इसी वीडियो को दिखा रहा हूँ दैट हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ आई एम मेकिंग मनी. एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक मनी by writing online. I will show you how I closed clients, how I did other things. But अभी टाइम्स की बात नहीं करनी है, अभी हमें शुरुआत करनी है, और जिस तरीके से मैं शुरुआत करने को कह रहा हूं उसी तरीके से ही शुरुआत करो. So I hope आपको नीश बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब एक छोटी सी बात मैं कह लेता हूं कि यार जो नीश का खेल होता है ना, कोई कितना भी कह ले, क्योंकि मेरे साथ हुआ कि कोई कितना भी इतना मैंने सुना समझा कि अच्छा ये चीज़ होती है ये चीज़ होती है, बट नहीं आता यार समझ. वी फेस दिस प्रॉब्लम अलॉट. नहीं आता समझ कि नहीं आ रहा यार, नहीं हो पा रहा मैं स्पेसिफिक, क्या करूँ. आई एम जस्ट मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है, बहुत हर किसी की लाइफ में आती है मेरे हिसाब से जब वो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं. आई एम हियर टू हेल्प यू. एज आई सेड इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट आई विल प्रोवाइड 1-on-1 मेंटरशिप फॉर फ्री. सो ऐसी चीज़ आप अगर किसी चीज़ में फंसते हैं, सो नीचे फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे फिल करिए. लेकिन आपके पास अपना ना स्पेसिफिक, आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए कि मेरे को ना ये दिक्कत हो रही है, उसको फिल कीजिए. आई विल सी योर एप्लीकेशन एंड डोंट वरी. ऐसा नहीं है कि मैं आपकी एप्लीकेशन फेल कर दूंगा कोई अगर अच्छी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम सी. फिल द फॉर्म, हम 1-on-1 आएंगे, मैं आपको चीज़ बताऊंगा जहाँ पर आप ठीक हो सकते हैं, कुछ अपनी लर्निंग शेयर करूंगा, कुछ जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आई विल टेक योर क्वेश्चंस, एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री. व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर फ्री? बिकॉज अगेन आई सेड दैट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट. आई हैव नॉट मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज़. अगर मिलियंस भी कमा लिए होंगे तब भी शायद मैं इस चीज़ के पैसे ना ले रहा हूँ, बट नहीं कमाए. अभी पैसे लेने का नहीं बनता कुछ भी. आई स्प्रेड दिस मैसेज दैट राइट नाउ आई एम लर्निंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, एंड इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, if you decide to become part of this journey, I guarantee you will win, because I know that I will win, and I will make sure that you win, because you are starting with me by joining my community, by being my
one of important people. When you subscribe to my newsletter, in newsletter, again I'm telling you, it's not just written words. I provide the videos which I don't upload anywhere, YouTube, Twitter, LinkedIn, kahin bhi nahi, just for my newsletter subscribers, because they are my real connection. They really care. So if you care for me, I'm gonna care for you so much. अगर आप 2 गुना काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 गुना मेहनत कर रही हैं, मैं 4 गुना मेहनत करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, अपने मतलब मैं तो खुद तो करूंगा ही, बट आपके लिए 2 गुना मेहनत क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यू वॉच द वीडियो, यू फिल द फॉर्म एंड यू आर ऑन द कॉल ऑन टाइम एंड यू आर लर्निंग, यू आर अकाउंटेबल टू मी एंड अदर पीपल इन द कम्युनिटी, देन इट मीन्स यू आर डूइंग 2x वर्क. तो आप 2x करेंगे, मैं 4x करूँगा और प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और हेल्प करने की कोशिश करूँगा. आप 4x करेंगे, मैं 8x काम करूँगा फॉर यू. So if you want to be part of it, if you want my help for free, fill the form and I will email you the link and we will be on the call. Thank you so much. A simple strategy you can follow if you want to write long form is just start your newsletter as well. For example, you are writing on LinkedIn, but you want to write a really long newsletter. You are into, मतलब कि तुमको वो long लिखना पसंद है, बड़े बड़े चीज़ें, तो you can start your newsletter as well. And it's good if you start. बाकी अगर इस 1-2 महीने बाद मैं बता रहूँगा आपको कि आपको यूज़ करना है, कब न्यूज़लेटर बनाना है, कब नहीं बनाना है. लेकिन अगर स्टार्टिंग में यू आर फेमिलियर विद द न्यूज़लेटर, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन न्यूज़लेटर, योर ओन न्यूज़लेटर, एंड प्रमोटिंग ऑन द साइट, ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर राइटिंग. तो क्या करना है, ये क्या 2 चीज़ हो गई कि आप लिंक्डइन पे भी अलग लिखिए, न्यूज़लेटर पे भी अलग लिखिए? नहीं, जो लिंक्डइन पे लिख रहे हो वही न्यूज़लेटर पे लिख दो. It will be just कि तुम्हारे पास न्यूज़लेटर है, people will subscribe, you will have some kind of some emails, you will have some proofs that you know how to write newsletter. And now my friends, you will watch me how to write. लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले ये समझते हैं प्रिंसिपल जो आपको दिमाग में होना चाहिए, that you have to write in quantities. मीनिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन आप रोज़ एक लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं या एक ट्विटर थ्रेड लिख रहे हैं. अगर चलिए आपके हिसाब से आप एक ही लिख सकते हैं रोज़, कोई बात नहीं, स्टार्ट विद इट, बट यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ राइटिंग्स, क्वांटिटी जितना हो सके, अपनी मतलब लिमिट पुश करके जितना हो सके बस लिखो, आउट, पुट इट आउट, पुट इट आउट. पीपल विल कमेंट, पीपल विल नॉट लाइक इट, समवेयर कोई कुछ गलत कमेंट कर दे, इट्स ओके, इट्स ओके. क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, लिखते जाओ लिखते जाओ, अपलोड करते जाओ. अब ये नहीं लिखते जाओ तो मतलब कचरा ही लिख रहे हो. फॉलो, अभी मैं जो राइटिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूँ उसको फॉलो करो. अच्छा कंटेंट तुमको भी पसंद आना चाहिए कि हाँ ये एज अ लेंस ऑफ ऑडियंस तुमको लगना चाहिए, हाँ पीपल, लोगों को बहुत पसंद आएगा. देन पुट इट आउट, मतलब लिखते जाओ, कुछ भी लिख के मत कर देना. सो दैट्स समथिंग यू मस्ट फॉलो. अब मुझे देखो, कुछ प्रोसेसेस, कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीवन टॉक्स अबाउट इट कि एआई आ गया है तो राइटर्स नहीं रहेंगे, राइटिंग खराब है, ये वो. वेट, इट्स नॉट लाइक दैट. यू नो, लास्ट ईयर जब एआई आया था नवंबर के महीने में, आई वाज लर्निंग कॉपी राइटिंग, हाउ टू राइट, एंड दिस इज रियली पेनफुल टू मी that I left copywriting because I got scared of ChatGPT. Because I think now, because मैंने डिसाइड किया था मैं कॉपी राइटिंग स्किल एक्वायर करूँगा. फॉर एग्जाम्पल वो मेरे इनिशियल डेज थे बिल्कुल, तो मेरे को 3-4 महीने हुए सीखते हुए. कॉपी राइटिंग इज अ स्किल विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन जैसे ChatGPT आया, जो वो केओस मचा और जो नॉइज़ हुआ ना ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में कि यू कांट, अब राइटर्स नहीं है, ये नहीं है, तो मैं उसका शिकार बन गया एक तरीके से, उस नॉइज़ का, उस केओस का. एंड आई स्टॉप्ड कॉपी राइटिंग, आई लेफ्ट कॉपी राइटिंग. बट मैं इस बात से बहुत खुश था कि मेरे को कॉपी राइटिंग के प्रिंसिपल्स आ गए, बट वो तो यूट्यूब पे बहुत हेल्प करेंगे, एंड इट स्टिल हेल्प्स. तो कॉपी राइटिंग इज रियली सच अ पावरफुल स्किल विच हेल्प्स यू एज अ मार्केटर. And you can't become a good YouTuber if you are not a good marketer. So it helped me indirectly, but it's still painful to me. Not now, it's not painful, but whenever I think, I feel that I shouldn't have done that. I shouldn't have left copywriting because of the chaos. Because now, after 1 year, I know that AI will not be able to replace the writers. If you are really a writer, not just a 16-17-year-old copywriter who earn more than 1 lakh once a month, and that's something he only writes in his Twitter threads or in his videos. Yeah, or you are not that
guru who have cigar in and a car and that chashma, saying that you will earn a lot of money by copywriting. You can do it too. You are not that person. Okay, so AI will not replace you because I'm going to teach you how to use AI and how would it help. Because if you know how to use AI, no AI can't replace you. Even you will be replacing some of the people who doesn't know AI. You are becoming a threat. Okay, so let's jump into it. न्यूज़लेटर का प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि पर्सनल ब्रांड के ऊपर है. सो लेट्स स्टार्ट. पर्सोना. You are an adept content creator specializing in newsletter composition for personal branding. You masterfully craft narratives that are intriguing, lengthy, yet digestible, and have practical application for your audience. Now, if you see, सबसे पहली लाइन क्या है? You are an adept content creator. यहाँ पर मैं कॉपी राइटर भी लिख सकता था, बट मैंने कंटेंट क्रिएटर लिखा बिकॉज राइट नाउ मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था एक कंटेंट राइटर, एक कंटेंट क्रिएटर उसे लिखे. मतलब मैं एक कंटेंट क्रिएटर यानी मैं एक अगर न्यूज़लेटर लिख रहा हूँ कि भी पर्सनल ब्रांड के ऊपर, तो मैं कैसे लिखूंगा? या फिर मैं नहीं, एक जो कंटेंट क्रिएटर जो कि कंटेंट क्रिएशन में एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कंटेंट कैसे बनाते हैं. सो नाउ यहाँ पर अगर आपको एक कॉपी राइटर चाहिए कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा न्यूज़लेटर एक कॉपी राइटर लिखे, सो यू कैन राइट द कॉपी राइटर एज वेल. You are the one who is defining the persona because you know what outcome you need. So, specializing in newsletter composition for personal branding, you masterfully. अब now I am saying कि specializing है वो newsletter composition में for personal branding. So I'm defining कि भी तुम हो क्या? तुम क्या हो? मैं एक adept एक content creator, लेकिन तुम specialize किस में करते हो? Newsletter composition में for personal branding. So I am creating a persona. You masterfully craft narratives that are intriguing, lengthy yet digestible. Now this thing, lengthy yet digestible, it's my favorite thing. Why? Because I love long form content, whether it's video or written. Why long form? Because I believe that real magic happens or the real transformation happen when you watch a 1 hour long video. Because you will have lots of things to think. You will have lots of things to try out. When you read a long newsletter, you will have lots of ideas. You will have something to do. I know there is a debate that goes on. There is a shorter human attention span. But I think that's a myth that people believe. Because if there is a short attention span, there are people I have seen who read series of books, not just books, series of the books. They wait for the another sequel. I have seen people watching documentaries, like educational documentaries for hours. They watch series for hours. So it's not about the human attention span problem. It's about problem of your content, of your mindset. If you want to thrive into long form, you have to make things interesting, lengthy, yet digestible. So I am a big believer of long form content. I am in love with the long form content, but it should be digestible. So that's why I wrote. This is my main idea. Now have a practical application. Now see कि मुझे कैसा चाहिए था outcome. I can see कि मेरा outcome कैसा होना चाहिए, lengthy लेकिन digestible. So here is something you can learn, that is having a vision. What does it mean? It means you can see what the outcome is. You can see how the world will look like. You can see that, okay, my writing should look like this. My marketing strategy should look like this, will look like this. And this is, you have that vision. Not many people have that, but you have it. We see people saying that entrepreneur is visionary. It means कि वो देख सकते हैं जो काफ़ी लोग नहीं देख सकते. और जब जिस तरीके का आपके पास विजन है, उसी तरीके का आपको कोई और मिल रहा होता है सेम विजन का, सो यू हैव गुड फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन. हम बहुत आसानी से उनकी बातें समझ रहे होते हैं, बिना कहीं भी बहुत चीज़ समझ रहे होते हैं, बिकॉज वी शेयर द सेम विजन. वी कैन सी द सेम थिंग. सिमिलरली व्हेन यू आर क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट, यू मस्ट हैव द विजन टू सी द आउटकम. ओके, मुझे ये चाहिए. सो मुझे पता है कि मेरे को ना लेंथी चाहिए. आई हैव अ विजन ऑफ अ लेंथी ये डाइजेस्टेबल, कि डाइजेस्ट भी हो पाए.
Now, have a practical application for your audience. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे अभी बात करते हैं. योर रिटन कंटेंट शुड बी कंप्रिहेंसिबल, इंगेजिंग एंड रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट आइडिया कि कंप्रिहेंसिबल हो, इंगेजिंग हो, चाहे बड़ा हो लंबा हो. जब हम कोई एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत लंबी है, लेकिन हमको वो पढ़ने होती है, लंबी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको हट नहीं सकते वहाँ से. वी वॉन्ट टू रीड इट. सो मुझे न्यूज़ लेटर कुछ उस प्रकार का बनाना है. योर टोन इज अप्रोचेबल, योर लैंग्वेज इज क्रिस्टल क्लियर, free of excessive jargon. Now, this is something is important to me because when I have a vision of a lengthy newsletter yet digestible, it should be free of excessive jargon. Because अगर मान लीजिए उसमें एक्सेसिव जार्गन है, लेंथी है, लेकिन लोग कह रहे हैं यार बहुत इंफॉर्मेशनल है, यार बहुत इंफॉर्मेशनल है, तो जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी ऑडियंस है. You have a good, amazing information, valuable information, और ये है आपकी ऑडियंस. और उसके अंदर जार्गन्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, टेक्निकलिटीज है जो आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है और होनी भी चाहिए. और यहाँ पे ऑडियंस है. लेकिन जब आप ऑडियंस को वो अगर सिर्फ इंफॉर्मेशनल, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल देंगे तो वो कभी लेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उसके अंदर इतनी एक्सेसिव जार्गन्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, टेक्निकलिटीज है जो उनको पसंद ही नहीं है. तो जो कंटेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़ लेटर है या किसी भी तरीके का फॉर्म ऑफ कंटेंट है, वो ब्रिज का काम कर रहा होता है इन दोनों के बीच. वो ब्रिज अगर हम उस फाउंडेशन पे बना लेंगे जिसके अंदर एक्सेसिव जार्गन है, कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, तो वो ब्रिज जो है बहुत ही कमज़ोर होगा और लोग उस पर जाएंगे ही नहीं. मतलब वो ब्रिज बनेगा ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, और वो हमें मिलेगा ही नहीं जो हमें चाहिए. क्या चाहिए हम कि हमारा रीडर हमारा कंटेंट देखे, व्यूअर हमारा कंटेंट देखे, समझे, बट ऐसा होगा ही नहीं. तो इसलिए फ्री ऑफ एक्सेसिव जार्गन. आई डू बिलीव कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं तो सिंप्लीफाई इट. इवन आई ट्राई टू सिंप्लीफाई द वर्ड्स विच लुक सिंपल. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, so I will try to simplify it into the simpler words. What is discipline? You may have heard it, but what is discipline? If I will try to make you understand what is discipline in simpler, easy words, you will be like, okay, this is easy. I can get it. I know now what this discipline is. So that's why I believe free of excessive jargon. So you have to know that what thing you want in your newsletter or in your outcome. You understand the balance between providing valuable content and making it easily consumable. Again, emphasizing on that idea कि consumable हो. You can convey complex idea in a manner that's straightforward, ensuring readers can immediately apply the insight shared. Now, this is again is something I really love to talk about. कि अब वही है कि जो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इस तरीके से बताए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है? इंश्योरिंग रीडर्स कैन इमीडिएटली अप्लाई द इनसाइट शेयर्ड. नाउ आई सी दिस प्रॉब्लम विद लॉट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स व्हेन दे मेक देयर वीडियोस दैट दे डोंट शो व्हाट यू शुड डू आफ्टर वाचिंग द वीडियो. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑफ कोर्स शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस और दे आर इंस्पायरिंग and they are also providing value. But after watching video, okay, you think after watching, how should I get started? What should I do now? I know these things. What should I do? क्या करूँ? So I think it's very important, and it is responsibility for a content creator or an entrepreneur to give you the steps, like ensuring readers can immediately apply. कि जैसे आपने वो insight share करी, उसको वो immediately apply कर पाए. Just after you spoke about it, you wrote about it. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ जब हमने एक पर्सोना क्रिएट कर रहे हैं तो हमने एक प्रॉब्लम देखी कि यार ज़्यादातर क्रिएटर्स में ये नहीं हो रहा, ज़्यादातर राइटर्स ये नहीं कर रहे. सो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए अपने प्रॉम्प्ट्स में हमने डाल दिया. अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपने खुद ने देखी है, खुद ने समझी है और फिर उसको प्रॉम्प्ट्स में फीड करा है. तो इसलिए जो आउटकम होगा वो जेनरिक हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू थॉट ऑफ अ प्रॉब्लम, यू जस्ट नो द सोल्यूशन एंड यू आर यूजिंग द AI. सो दैट्स वाई बहुत सारा फियर है, बहुत सारा अभी भी लोगों को लगता है कि चैट GPT जैसे टूल्स या AI टूल्स विल रिप्लेस देम. वही बात है कि AI will not replace you. People who know how to use AI will replace you. So it's very important for you to learn these things, and it's very easy. It's not that difficult. You just have to be creative
many people thought when ChatGPT came that I don't need to be creative. You have to be so creative when it comes to using AI. So let's go forward. Now, at last, I just said, breathe deeply, engage your expertise in personal brand newsletter development, focusing on delivering engaging and comprehensive content. So this is how I wrote my persona. Now, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसे पर्सोना लिखा जाता है. पर्सोना आप उस तरीके से कभी मत लिखिए एक्ट एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट. जब आप मेगा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं. थोड़ा बड़ा पर्सोना लिखिए. पर्सोना लिखने के लिए उस फील्ड को समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, और उसको समझने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बुक्स पढ़िए जो पहले की हैं, या फिर अगर न्यूज़लेटर चीज़ हैं तो लोगों को सुनिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या क्रिएटर्स हैं जिनके न्यूज़लेटर बहुत फेमस हैं. ठीक है, अपनी फील्ड में जो भी चीज़ है उसको सुनिए, उसके आर्ट को समझिए, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है तो वो भी एड्रेस करिए और अपने पर्सोना में डालिए. सो आई होप इट्स क्लियर. नाउ coming to the second part of the framework, and that is action. Action is basically mission. What mission you are giving to the AI? अब मिशन के अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि क्या मिशन है, तो हम कहते हैं कि ये चीज करनी, यानी कि टास्क. जैसे एक्शन, एक्शन यानी कि मिशन. क्या मिशन आप एआई को दे रहे हैं? मिशन यानी कि क्या टास्क है. सबसे पहले तो मिशन के अंदर टास्क किया कि हमको ये काम करना है. सो व्हाट टास्क आई रोट? Develop a compelling and extensive newsletter intended for personal brand audience. इनको पर्सनल ब्रांड के बारे में जानना है, उनके लिए कंपेलिंग एक्सटेंसिव न्यूज़लेटर लिखिए. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि शिट, पर्सोना इतना बड़ा लिखा लेकिन टास्क इतना छोटा सा, क्या टास्क हम और बड़ा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. होता क्या है कि आपने मान लीजिए टास्क लिखा, बहुत और एक्सप्लेन करा उस टास्क को, 4 लाइन 5 लाइन का लिखा. यू रन द प्रॉम्प्ट एंड यू डिडंट गेट आउटकम, डिजायर्ड आउटकम, मतलब तुमको पसंद ही नहीं आया, पर तुमने एक लाइन लिखी और उसको बहुत अच्छा आउटकम आ गया. इट विल हैपन. सो इट्स नॉट अबाउट कितनी लाइन्स लिख रहे हो, इट्स अबाउट प्लेइंग विद इट एंड हैविंग डिफरेंट आउटकम्स. और जो आउटकम आपको लगता है ये तुमको चमक रहा है, वो आउटकम यूज इट, एड योर ओन टच. नाउ आफ्टर टास्क, जब एक मिशन में टास्क होता है तो हम उसको क्या स्टेप्स दे रहे हैं अभी आई को कि किस किस तरीके से करना है. ये भी बहुत आसान है, क्योंकि हमने अगर पर्सोना लिख लिया है तो हमको स्टेप्स भी बहुत आसानी से हम लिख लेंगे. तो स्टेप नंबर 1 हम ये कहते हैं कि बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ पर्सनल ब्रांड. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरी भी यही हैबिट है कि मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ते थे. मुझे लगता है कि हैबिट जो मुझे मिली है ये स्कूल टाइम से मिली है, क्योंकि जैसे ही हम कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते थे, साइंस का चैप्टर पढ़ते थे, तो उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है, जो टीचर है बस वो चैप्टर का नाम पढ़ते थे और पूछते थे इसका क्या मतलब है. पहले यही समझते. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये समझ लिया. अगर डिसिप्लिन के ऊपर कोई चैप्टर है तो नाम कि डिसिप्लिन क्या है, शुरुआत वहीं से हो रही होती थी. यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम द मार्केटिंग वर्ल्ड, most of the people don't know what's the difference between marketing, sales and branding. They think ये तीनों सेम ही है. अब ये तुमको जार्गन्स लग रहे होंगे कि बहुत डिफिकल्ट जार्गन्स है, if you are not familiar with these words, but that's the game. You have to know the difference, you have to make it simple, you have to understand the core of these words कि marketing क्या है, brand क्या है, sales क्या है. So ये चीजें समझनी होंगी. तो पहला स्टेप ही यही है कि उसके कोर को समझाओ. दूसरा स्टेप, शिफ्ट योर फोकस टू कंटेंट क्रिएशन, क्राफ्ट कंपेलिंग डिटेल सेक्शंस दैट स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर्स. व्हाई आई रोट कि अपना फोकस कंटेंट क्रिएशन पे रखना, बिकॉज मेरा जो नीश है वो कंटेंट क्रिएशन का ही है, तो मैंने इसी वजह से कहा कि अपना फोकस कंटेंट क्रिएशन पे रखना. अब आपको कहाँ पे अपना फोकस शिफ्ट करना है वो आप कर सकते हैं अपने स्टेप्स में, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को अब 4-5 स्टेप इसे देने, तो सोचना है कि क्या क्या स्टेप देने हैं. तो पहला तो भाई कोर अंडरस्टैंडिंग उसे समझा दो. दूसरा कि फोकस कहाँ रखना है, कैसा करना है, क्राफ्ट कंपेलिंग बनाना है, डिटेल सेक्शंस बनानी है जो रीडर से डायरेक्टली बात करे. थर्ड स्टेप, स्ट्रक्चर द न्यूज लेटर इन अ ईजी टू डाइजेस्ट पैटर्न, प्रायोरिटाइजिंग रीडर एंगेजमेंट एंड क्लैरिटी. विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी व्हेन आई राइट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ईजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए जो भी रीडर उसे पढ़ रहा है. फोर्थ स्टेप,
Again, this is also my favorite. Provide actionable insights with the content to facilitate practical implementation for the reader. कि एक एक्शनेबल इंसाइट दो कि भाई हाँ भाई इसके बाद मुझे ये काम करना है, मैंने ये पढ़ लिया, अब हम रीडर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं. वी एज अ क्रिएटर हैव टू व्यू आवर वर्क एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर, कि रीडर इसको फील करेगा तो कैसा लगेगा, रीडर के लिए क्या है. ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, जो हमारा कंज्यूमर है उसे कैसा फील हो रहा होगा, वो क्या रीड कर रहा होगा, वो क्या कंज्यूम करके क्या चीज़ बोलेगा या फील करेगा. वी ऑलवेज हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड. सो एक्शनेबल इंसाइट इज समथिंग आई बिलीव कि हमेशा होने चाहिए, एक एग्जीक्यूशन स्टेप होना चाहिए. सो दीज वर द स्टेप्स. एक्शन समझ आ गया जिसके अंदर हम मिशन दे रहे होते हैं, मिशन यानी कि टास्क, और टास्क के साथ स्टेप्स. सो अभी अब तक आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि जो मेगा प्रॉम्प्ट है कोई जेनेरिक चीज़ नहीं है, जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है. हम ट्रेन कर रहे हैं एआई को, चैट जीपीटी को, कोई भी, आप बार्ड पे हैं या फिर दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको पूरा ट्रेन कर रहे हैं. हम सिर्फ जेनेरिक क्वेश्चन नहीं कि चलो राइट अ न्यूज़ लेटर फॉर मी. वी आर ट्रेनिंग है, वी आर ट्रेनिंग द चैट जीपीटी. सो कॉन्टेक्स्ट. नाउ व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मीन्स जो टास्क है उसकी सराउंडिंग्स में क्या डिटेल्स है, उसकी सराउंडिंग क्या है, क्या सिचुएशन है, वही कॉन्टेक्स्ट है. सो फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़लेटर शुड इनहेंस पर्सनल ब्रांड्स रीच एंड वैल्यू. अब जो न्यूज़लेटर है मैंने उसकी डिटेल दी कि भाई क्या डिटेल है, वही हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है. ऑफरिंग बोथ इनसाइट्स एंड सिंपल एक्शनेबल टेक अवे फॉर द रीडर. तो इसको अगर हम और किसी एग्जाम्पल पे बात करें कि और क्या कॉन्टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं, किसी डिटेल देनी हो, सराउंडिंग देना हो. फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरा न्यूज़लेटर लोग पढ़े तो सोच में पढ़े कि ये तो इट मेक्स सेंस. इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन आई वांट माय न्यूज़लेटर, व्हेन पीपल विल रीड दिस न्यूज़लेटर दे शुड फील दैट इट मेक्स सेंस. इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो पढ़ेंगे तो उनको अच्छा फील होगा. इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ अ डिटेल, इट इज़ अ सराउंडिंग. सो ऑलवेज थिंक कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसके जो तुम्हारा टास्क है उसकी डिटेल क्या है, और उसको लिख दो. बिकॉज क्या है कि हमें स्पेसिफिक जाना है ना, रेलेवेंट जाना है, जो हमारे स्टाइल को भी सूट करता हो. तो जब हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो उससे हमको बहुत ही स्पेसिफिक आंसर मिल रहा होता है. हम बहुत ही स्पेसिफिक, धीरे धीरे. अगर हम पर्सोना लिखा हमने, तो हमने इसलिए लिखा हम स्पेसिफिक जाए. हमने एक्शन लिखा, टास्क लिखा, स्टेप लिखा, क्योंकि हम स्पेसिफिक चाहते हैं भाई. हम जेनेरिक नहीं चाहते, हम रेलेवेंट चाहते हैं, डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, और जो कि सुपीरियर हो. सिर्फ डिजायर्ड ही नहीं, वो कि सुपीरियर भी हो, क्योंकि डिजायर्ड हमारा है, हमारी डिजायर उसको सुपीरियर बनाते हैं हमारे प्रॉम्प्ट्स. नाउ आफ्टर इट, कंस्ट्रेंट. कंस्टेंट बेसिकली समझ लो कि जो तुम टास्क मिशन में उसको तुमने भेज दिया है एआई को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें तुम चाहते हो वो ना करे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन बहुत बहुत बार हमें ये नहीं पता होता हमें क्या नहीं करना. तो इसलिए हम लोगों को सुनते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, समझ आए कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. क्योंकि अभी कभी कभार हम नई चीज़ें ट्राई कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पे, और वो हमें भारी पड़ जाती हैं. तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. तो कॉन्स्टेंट में मैंने क्या दिया, जो कि मैं क्या नहीं चाहता मैं अपने न्यूज़लेटर में, कि जार्गन्स हो ही ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो ही ना, क्या हो, एक स्मूथ रीड हो, और अवॉइड रीडर फैटिग विद एक्सेसिवली लेंथी सेक्शंस. देयर इज अ रूल इन राइटिंग. रूल तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो कभी भी पैराग्राफ्स में मत लिखिए लॉन्ग मतलब इतना देख के लगे अरे यार क्या पढ़ना पड़ेगा इतना सारा. यू शुड, वो देखने से लगे कि इट्स ईजी टू रीड, चाहे लंबा, इट्स ईजी टू रीड. तो वो नहीं चाहता. अवॉइडिंग इट भी रीडर फैटिग, जो भी मैंने करा वरना, तो वो रीडर फैटिग है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. सो टेम्पलेट बेसिकली कि किस तरीके से आपको कंटेंट चाहिए, मतलब किस तरीके, किस फॉर्मेट में चाहिए. तो अब इस टेम्पलेट को समझे कैसे. कॉन्स्टेंट समझ आ गया, अब टेम्पलेट को कैसे समझे. टेम्पलेट, इफ यू आर इन द फील्ड यू नो कि कैसा मुझे टेम्पलेट चाहिए. इफ यू डोंट नो, इट्स ईजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. अगर आप न्यूज़लेटर लिख रहे हैं, आपको टेम्पलेट समझ नहीं आ रहा किस तरीके से होना चाहिए,
जस्ट गो एंड रीड जो कि बेस्ट न्यूज़लेटर हैं, जैसे मॉर्निंग ब्रीव हो गया, हसल हो गया, और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने पर्सनल ब्रांड वाले न्यूज़लेटर होते हैं वो पढ़ लीजिए, और यू विल नो द टेम्पलेट। बट फॉर मेरा जो फेवरेट है, मैं वैसे फॉलो नहीं करता, मेरा फेवरेट है कि ऑर्गेनाइज ऑल द अबव इन अ मार्क डाउन फॉर्मेटिंग विथ हेडर्स, बुलेट पॉइंट्स एंड बोल्ड वर्ड्स। यानी कि एक हेडिंग होगी, फिर सब हेडिंग होगी, फिर बुलेट पॉइंट्स होगा और बोल्ड वर्ड्स होंगे। तो दैट्स व्हाट आई लाइक। अभी जब आउटकम आप देखेंगे तो उसका बहुत ही देखने में बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है और पढ़ने में भी आसान लगता है, इसलिए आई लव दैट थिंग। सो ना, अब हमने पूरा प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हमने पर्सोना बनाया, एक्शन, टास्क, स्टेप्स, कंटेक्स्ट दिया, कंस्ट्रेंट्स दिए, एक टेम्पलेट दे दिया। अब हम चैट जीपीटी में जब ये प्रॉम्प्ट रन करते हैं तो हमें ये आउटकम मिलता है। यू कैन सी पर्सनल ब्रांड मास्टरी न्यूज़लेटर, अनवीलिंग द एसेंस ऑफ योर पर्सनल ब्रांड, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल ब्रांड। सो लिखा भी अच्छा है, योर पर्सनल ब्रांड इज मोर देन जस्ट अ लोगो, कैची टैगलाइन, इट्स द एसेंस ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड for. Take a moment, reflect your values, passions, and unique skills that set you apart. Your personal brand is a tapestry of woven from these threads. So यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि जो मैं इसको हटा दूंगा कि tapestry woven from these threads, मुझे of course ये words पसंद नहीं, मतलब इतने difficult, मुझे बहुत easy word लिखना पसंद है, तो मैं हटा दूंगा। लेकिन यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया। And what's the most important and beautiful thing, this is action step. Jot down 3 different adjectives that describe you and 3 core values that guide your decision. This forms the foundation of your personal brand. This is what I'm talking about, कि जब आप पढ़ोगे तो शुरुआत में पढ़ते ही आपको एक एक्शन स्टेप मिल गया कि मुझे ये करना है। सो अब एक्शन स्टेप मिल गया, यू विल टेक योर पेन एंड पेपर और यू राइट इन योर नोट्स ऐप कि अच्छा मेरा क्या चीज़ है, मतलब मेरे को क्या डिस्क्राइब, मेरी 3 कोर वैल्यूज़ क्या है, मुझे क्या डिस्क्राइब करता है, यू विल राइट इट। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब एक्शन स्टेप होते हैं, एग्जीक्यूशन स्टेप्स होते हैं, it makes you powerful. Now going ahead, थोड़ा और देखते हैं नीचे क्या क्या हमको दिया है। Crafting compelling content, your personal brand's voice, storytelling with purpose. We have again action step. Every personal brand has a story. Share your authentically, weaving in challenges you have overcome, the lessons you have learned. Your audience craves authenticity. It is key to building a genuine connection. Again, good. Easy words, simple words, action steps, showcase your expertise. Action steps, key area of your expertise. Create a list of 3 action-enabled tips that your audience can implement immediately. Good. Structuring your message, clear headlines, clear messages. Action steps, review your last 3 newsletters, access if the headlines effectively communicate the main message. Power of visual, again action step. Actionable insight, goal of setting personal brand growth, action step. Consistency is key, action step. Conclusion, here we go. I think I'm impressed by this outcome. And it is not generic outcome. It is good. For me, I think I can use it. But here is the new thing you should know. And that is adding your own touch. What does it mean? Now, कहते हैं कि जब AI का चाहे हमने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा और इससे बढ़िया प्रॉम्प्ट भी हो सकता था और लिखा और उसका एक आउटकम आया, never copy and paste it. Why? Because you must add your own touch of what. एंड इसका मतलब क्या है, कोई कहता है कि अपना टच डाल दो, अपना टच डाल दो। सो आई हैव करेक्टेड, आई थिंक अपना टच, आई थिंक नो, आई बिलीव कि अपना टच डालना मतलब एडिंग योर स्टोरीज। व्हाट डज इट मीन? बिकॉज विथ इवन इफ इट्स वैल्यूएबल, एक्शन स्टेप्स हैं, वैल्यूएबल है, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस. But when you provide that valuable information in the storytelling format, means adding your own story. For example, understanding your personal brand. कि अपने यहाँ पे क्या है, 3 adjectives that describe 3 core values that guide your decision. Now, if you have a personal brand, of course you have if you are writing this newsletter. So, how did you describe your 3 core values? And it's not easy. How did you come up with your 3 core values? There is a journey behind it. There is a story behind it. Write it or add it. So, it means adding your own touch. Adding your story means adding your own touch. Because वो story तो AI भी नहीं लिख सकता. Because he doesn't know. तुमने experience करी, तुम्हें पता है क्या क्या conflicts आए थे उसके अंदर, कैसे आपने overcome किया, क्या पहले myths से, फिर कैसे आपका chain transformation हुआ. तो that is the story. You must add if you want to add your own touch. तो पहला क्या कि हमने prompt से तो बहुत ही एक
स्पेसिफिक आउटकम निकाला, बहुत ही डिजायर्ड आउटकम निकाला, फिर उसमें अपना टच देने के लिए अपनी स्टोरीज डाली, तो इन्फॉर्मेशन भी है, वैल्यूएबल भी है, और हमारी स्टोरी टेलिंग भी है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग क्रिएट्स कनेक्शन एंड द ट्रस्ट विद द ऑडियंस, विद द पीपल, विद द कंज्यूमर. It is very important, strong element part of every business and the every content. Doing the boring work for the long period of time. And again, I learned this thing from Alex Ramosi. He says कि, and I also feel this, I also know this and experience it, कि कोई भी चीज़ है ना, I experienced this in investing when I was learning about investing. I started my journey into finance. I still have a keen interest in learning finance. So when I was learning how to invest in stock market, so I understand that always people see investing as a complex process. कि बहुत difficult है ऐसे. But in reality, investing is really a boring work. It's not interesting. बहुत boring काम है. If you're and ना boring मतलब इन तुम गलत कर रहे हो. When you're doing it right, you will know that investing is really a boring work. It is. तो वो जो boring work है वो लोग नहीं कर सकते because they try to make it complicate. बिकॉज उनको लगता है कि यार जो प्रोसेसेस होते हैं ना जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट रियलिटी क्या है कि वो बहुत बोरिंग काम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड राइटिंग, मैंने 6 मंथ्स का टाइम दिया, लेकिन 1 महीने बाद बोरिंग लगने लग गया. बिकॉज कोई तो कंटेंट देख नहीं रहा, 2 व्यूज़ आ रहे हैं, वो देख के परेशान हो रहे हो, कमेंट्स नहीं आ रहे, इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आइडियाज़ नहीं आ रहे, लिखा नहीं जा रहा, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, डाउट्स आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, या फिर कहा जा रहा है कि, या फिर ये सोचो ये वीडियोज़ ही ख़राब है. ऐसा कुछ भी नहीं है. या एआई है, कुछ ना कोई बहाना दे रहे होगे कि एआई है तो नहीं लिख पाएंगे, अच्छा नहीं हो पाएगा, या फलाना फलाना फलाना. तो वो जो बोरिंग काम है, अगर ऐसा बोर फील होने लगे और खुद को आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो दिमाग को आपको ये बोलना है कि यू हैव टू जस्ट बी इन दैट बोरिंग वर्क फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड मतलब कुछ 6-7 महीने रहना है टू विन. एंड अगर आप बीच में छोड़ देते हो ना कि बोरिंग वर्क है, मैं छोड़ देता हूँ, बोरिंग वर्क तो आप कभी कहोगे नहीं कि बोरिंग वर्क है, कोई ना कोई एक XYZ एक्सक्यूज देके आपने उस काम को मान लीजिए छोड़ दिया. लेकिन आई एम गोना मेक यू रेग्रेट द डिसीजन. वाई? बिकॉज आफ्टर 6 months और इन बिटवीन आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल टेल यू दैट आई मेड मनी by doing that work, boring work, and I'm accountable to you. I feel that bore. I know I would feel that bore. And मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे भी वो फील होगा कि ये बोरिंग काम है. मैं भी अपने आप को कोई फलाने एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, शायद यही जो 3-4 एक्सक्यूज़ दिए यही मैं भी खुद को दे रहा हूँ. लेकिन नाउ आई हैव सेड इट इन वीडियो. मैं इस बात से पीछे हट नहीं पाऊँगा. मैंने पता नहीं पूरी दुनिया के सामने कह दिया है. पूरी दुनिया तो वीडियो नहीं देख रही है, बट कभी तो देखेगी, या आप अगर देख रहे हैं तो आपके सामने कह दिया. I won't go back on my words. I will do it and I will show you. And I think you will regret it. So don't give yourself opportunity to regret. Because regret is not something you should have or you should plan. Now you are planning your own regret when you choose to left writing online because you found it boring, or you gave some kind of excuse because it's the game of the 6 months and it's just the first step. 6 months is just the first step. There are lots of steps you have to follow, but in 6 months I can make sure that you can start earning if you do it daily. Now there is a condition applied. If you can't do it daily, or daily means for example you write 1 article daily, okay, समझ सकते हैं कि अगर आप busy हैं तो if you are not busy, if you have time, write more and more and more daily. And if you are on call, if you are on call with me 1-to-1, I'll make sure that you are uploading the content online daily, and you will make sure that I am uploading it or not. Boring work, for when you are doing that boring work, you will see data there, because when you are doing it again and again, that people are liking it or not. किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक डेटा होता है कि आपने कोई भी चीज़ अपलोड करी तो कितने इंप्रेशंस आए, व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, ठीक है. तो उस चीज़ों को आपको ट्रैक करना है. जहाँ पे आपको ज़्यादा व्यूज़ दिख रहे हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं, या जहाँ आपको ये डेटा आपको बता रहे हैं कि लोग ऐसे तरीके के कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आपको उसी तरीके का बार बार डालना है. इस चीज़ को समझिए कि आपने एक आर्टिकल अपलोड करा, दूसरा करा, अब आपने 15 दिन में 15 आर्टिकल अपलोड कर दिए, 15 थ्रेड अपलोड कर दिए. लेकिन उस 15 थ्रेड में से एक ऐसा थ्रेड था जिसको लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया, मतलब कि ज़्यादा देखा. तो आपको उसी तरीके के जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था, जिस तरीके का उस थ्रेड में लिखा था, उसी तरीके का अगला थ्रेड भी लिखना है.
उसी तरीके का अगला थ्रेड भी लिखना है, जो ज़्यादा पसंद आ रहा है हमको वो लिखना है उसी तरीके से। एंड इट ऑलवेज हैपन्स इन मूवीज़, कोई हमको मूवी फलानी पसंद आती है उस तरीके की, तो वैसे ही मूवी में नेक्स्ट पार्ट बनता है उसी का, उसी तरीके से दिखा रहे होते चीज़ें, थोड़ा ऐड ट्विस्ट, आपका टॉपिक अलग होता है, स्टोरी अलग होती है, चीज़ें अलग होती हैं, कैरेक्टर सेम होते हैं, डायलॉग बोलने का तरीका सेम होता है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमको सेम ही मिलता है, बस स्टोरी अलग हो रही होती है। तो उसी तरीके से आपके टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन तरीका वही रहेगा आपका, जो भी आपने पीस ऑफ कंटेंट पहले अपलोड किया था। इस तरीके से आपकी एक वॉइस बिल्ड हो जाएगी, इस तरीके से आपके रीच भी बढ़ेगी, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। पार्ट 2, बिजनेस ऑफ ऑनलाइन राइटिंग। अब ये पार्ट 2 कब बेनिफिशियल होगा? जब आप वो 6 महीना रेगुलरली लिख रहे होंगे, ठीक है। 6 महीना नहीं तो 2-3 महीना लिख रहे हैं, तब आपको पार्ट 2 समझ आना चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्ट 1 की चीज़ें अप्लाई नहीं करी तो पार्ट 2 में मतलब बस एक इन्फॉर्मेशन लेने की बात होगी, अगेन एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं, तो पार्ट 2 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए पार्ट 1 में जो जो चीज़ें बताई हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। हेल्प चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर फ्री। नंबर 1, कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग बेसिकली मतलब क्या होता है? राइटिंग द वर्ड्स दैट सेल। ये आपको मिल जाएगी गूगल पे डेफिनेशन। बट सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कॉपी राइटिंग का। इसको बहुत ही बेसिक और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉपी राइटिंग एक स्किल है जिसमें आप लिखना सीखते हैं। अब एक आम लिखना होता है अपने आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस के बारे में, और एक लिखना होता है प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक माइक है, ये माइक आपको दिख रहा है, दिस इज माई माइक। अब इस माइक का एक मुझे सेल्स पेज बनाना है, ठीक है। सेल्स पेज क्या होता है? सेल्स ईमेल समझिए। सेल्स ईमेल क्या होता है? ईमेल आपको पता है, सेल्स ईमेल यानी कि मुझे इस प्रोडक्ट को बेचना है, तो मैं एक ईमेल तैयार करूंगा जो इस तरीके से मैं लिखूंगा कि लोग इसको खरीदें। यही है कॉपी राइटिंग। तो आप एक तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जब मैंने बोला कि राइटिंग द वर्ड्स दैट सेल, यही हमेशा डेफिनेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट सेलिंग। जब आपने एक ईमेल लिखा तो ईमेल में होता है एक लिंक, जहां पर इसका मान लीजिए कि अमेजोन का लिंक है या फिर इसकी वेबसाइट का लिंक है जहां पर आप ऑर्डर कर सकते हो। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कॉपी राइटर कि जब उसने ईमेल खोला, ईमेल पढ़ा, तो उसने उस लिंक पर क्लिक करा। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कॉपी राइटर। यू आर नॉट सेलिंग, यू आर परसुएडिंग हिम टू क्लिक दैट लिंक। लिंक गया, वो वेबसाइट पे गया, उसको शायद ही पसंद ना आया तो वो शायद ना खरीदे, लेकिन शायद पसंद आ जाए और खरीद ले। सो ये हमेशा नहीं होता कि आप ऑलवेज दैट राइट, यू विल राइट वर्ड दैट सेल्स। You will write word that persuades them to do something you want them to do. That is copywriting. So it's a powerful skill. It means you are अपनी जो भी आप करवाना चाहते हैं उनसे करवा रहे हैं, तो उसके गलत काम नहीं करवा रहे हैं आप, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल इन्फो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इन्फो प्रोडक्ट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोर्सेज हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, या आप ईमेल्स लिख रहे हैं। अब ईमेल्स में क्या क्या हो रहा होता है? सब्जेक्ट लाइन होती है। वो कॉपीराइटिंग एक अलग ही तरीके की स्किल अपने आप में है, जिसको इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, बट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं ये कॉपीराइटिंग जैसी चीज़ें कवर कर रहा हूँगा। बट बेसिक आपको आइडिया आ गया कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा कमाना है एज अ राइटर एंड यू चूज टू बी अ कॉपी राइटर। अब आपने 5-6 महीने लिख लिया, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू बिकम ए कॉपी राइटर, बिकॉज कॉपी राइटिंग, कॉपी हटा दो तो क्या बचा? राइटिंग। यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट, you just have to learn the basics of sales. And why copywriting is a powerful skill? Because you learn about sales, marketing, psychology, researching. Now researching is the most important skill you will form when you will start learning copywriting. So ये 2-3 चीज़ें आप सीखोगे, आप रिसर्चिंग सीख जाओगे, थोड़ी सेल्स सीखोगे, थोड़ा सा लैंग्वेज ऑफ द कॉपी राइटर्स और मार्केटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सीखने के बाद यू विल बिकम अ कॉपी राइटर। सो जब आप 6 महीने लिख लोगे ऑनलाइन, तो आई डोंट थिंक इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम अ कॉपी राइटर। यू कैन चूज टू बिकम अ कॉपी राइटर। नंबर 2, घोस्ट राइटिंग, एंड दिस इज व्हाट आई चूज। आई एम स्टार्टिंग विथ कॉपी राइटिंग, कि मैं कॉपी राइटिंग स्टार्ट करूँगा, कि मैं जो कोर्स क्रिएटर्स हो गए उनके ईमेल्स और ईमेल कोर्सेज लिखने में हेल्प करूँगा, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जैसे जैसे मैं कॉपी राइटिंग के क्लाइंट अचीव कर लूँगा, थोड़े पैसे आने लगेंगे, आई विल स्विच टू द घोस्ट राइटिंग।
व्हाट इज घोस्ट राइटिंग? घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत जो दिखता नहीं है। उसी तरीके से आप वो राइटर हैं जिसका कहीं पे नाम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं अपना कंटेंट नहीं लिख सकता ऑनलाइन। एंड यू नो वो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू क्रिएट कंटेंट ऑनलाइन, टू राइट कंटेंट ऑनलाइन। सो मैं हूँ अपने बिजनेस में, मैं लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा? आई विल हायर अ घोस्ट राइटर। अब तुम कहोगे वाई वुडेंट आई हायर अ कंटेंट राइटर? लिसन मी आउट। कंटेंट राइटर कांट कॉपी योर वॉइस। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं एक मेरी एक वॉइस है, मेरी बिजनेस ओनर, मेरे लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, मैं उसी तरीके से चाहता हूँ मेरी राइटिंग से। तो एक कंटेंट राइटर इसको अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता। इवन तो अगर वो बहुत अच्छा कंटेंट राइटर है तो वो आसानी से घोस्ट राइटर बन सकता है, बस कुछ चीज़ें करने के बाद। तो जब आप घोस्ट राइटर बन जाते हैं, आप उसकी वॉइस को समझते हैं, उसका स्टोरी समझते हैं, उसकी चीज़ें समझ करके लोगों तक पहुंचाते हैं, खुद लिखते हैं, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आता, आप कहीं बताते नहीं हैं कि आपने इस क्लाइंट के लिए काम करा है। दिस इज हाउ घोस्ट राइटिंग वर्क्स। सो दिस इज द न्यू थिंग। कॉपी राइटिंग ना, अगेन कॉपी राइटिंग पावरफुल, बट ये जो चीज़ है घोस्ट राइटिंग, ये मुझे बहुत ही ना फैसिनेट करती है। अब ये घोस्ट राइटिंग भी क्या है, अगर हम बहुत ब्रॉड वे में समझे, तो अभी हम इस वीडियो में ब्रॉड मतलब कि बहुत खुल के नहीं समझेंगे। अभी मैंने आपको बहुत ऊपर से बता दिया घोस्ट राइटिंग क्या होता है, लेकिन आप 4-5 महीने बाद अगेन, इफ यू चूज टू बिकम अ घोस्ट राइटर, यू कैन बिकम अ घोस्ट राइटर बिकॉज यू नो हाउ टू राइट. That is most important skill that you have acquired in the period of 6 months by writing daily online. So you will acquire the skill of ghostwriting as well in just 1 or 2 week after spending months in learning writing, because writing is important. And you know, okay, this is the word ghost writing. You already know writing. You will just have to learn how to be ghost, and that is easy. Okay, it may sound like a joke, but it is realistic joke. सबस्टैक पे वॉल मॉडल क्या है? अब अगर आप लिख रहे हैं तो यू कैन, मैंने एक ऐसा कहा था कि जब आप इनिशियल ईयर न्यूज़ लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, वो ऐसा कहा इसलिए कहा था क्योंकि अब आपको मान लीजिए 4-5-6 महीने हो गए हैं लिखते हुए, लोग आपका कंटेंट, कुछ फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ऑडियंस है। ऑडियंस मतलब कि अगर मैं कोई बड़ी ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, अगर 50 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, 300 लोग भी हैं, यू हैव अ ऑडियंस, तो यू कैन स्टार्ट अ न्यूज़ लेटर, पेड न्यूज़लेटर। पे वॉल मॉडल क्या है? बेसिकली वो आप आधा न्यूज़लेटर आपका पढ़ पाएंगे, एंड आधा न्यूज़लेटर के बाद देयर इज अ पे वॉल, यानी कि उनको पैसा पे करना पड़ेगा, एंड दे विल पे यू सम मनी टू रीड दैट न्यूज़लेटर। एंड सबस्टैक इज इन अ ग्रोइंग फेज अगेन, कि सबस्टैक ऐसा हर कोई जो प्लेटफॉर्म आता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंस्टाग्राम केम, तब रील्स केम। सपोज करो इंस्टाग्राम तो चलो कब आया, जब रील्स ही आई, उस टाइम जिन लोगों ने उसको जल्दी से पकड़ा था, रील्स बनाना शुरू किया था, दिख ग्रो। ओके, सो सबस्टैक भी इसी तरीके से है, अपने ग्रोइंग फेज में है, अपने, मेरे को लगता है कि फर्स्ट वो जो एक ग्रोइंग फेज होता है किसी प्लेटफॉर्म का, तो उस फेज में है। तो फिर स्टार्ट विद सबस्टैक, उसके आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे होंगे, बिकॉज यू आर अर्ली अडॉप्टर। और सबस्टैक बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर रहा होता है बहुत अच्छे से, मतलब सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर सबस्टैक। मेरा भी न्यूज़ लेटर है, एंड एक चीज़ जो मुझसे आप सीख सकते हैं कि ऑलवेज वट इज़ द यूएसपी ऑफ योर न्यूज़ लेटर। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपके पास खास क्या है आपके न्यूज़ लेटर। मेरे खास है कि मैं वो वीडियोस दूंगा वहाँ पर, रिसर्च प्रोसेसेस दिखाऊंगा, या कुछ अलग ट्यूटोरियल्स दिखाऊंगा, या वो वीडियोस जो सिर्फ मेरे न्यूज़ लेटर सब्सक्राइबर्स के लिए होगी और किसी के लिए नहीं, सिर्फ वो देख सकते हैं। ये है मेरा फंडा। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई न्यूज़ लेटर। एंड ऐसे ही आपको कोई यूएसपी भी बनाना चाहिए। और यूएसपी अगर आप नहीं समझ आ रहा, आप सोच रहे हो कि मैं ये कॉपी कर लूँ, जो शिशिर वाधवन ने बोला है, कॉपी इट, आप भी ऐसे कर लो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन मेकिंग वीडियोस, यू कैन डू इट। पीपल विल सब्सक्राइब टू योर न्यूज़ लेटर बिकॉज यू आर गिविंग देम द वीडियोज। एंड ट्राई, सोचो कि और उसके साथ साथ क्या दे सकते हैं। सो आपके पास अब क्या है कि आप यू कैन, अगर आप बहुत ओवर डिलीवर कर रहे हैं अपनी न्यूज़ लेटर में, पीपल विल हैप्पीली पे यू। क्रिएट प्रोडक्ट और कोर्स। नाउ अब तक इस पॉइंट पर आप इतने महीने लिख लें तो आपकी कुछ ऑडियंस होगी, दे वुड वांट टू लर्न मोर। सो आप वहाँ पर एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, ई बुक हो गई, और या जैसे कि कोर्स हो गया, जो आपने सीखा है वो दूसरे लोगों को सिखाना। एंड यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट टू बी अ कोर्स सेलर, because you see a lot of scams, you see a lot of scams. Why? एंड इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि बहुत सारे जो राइटिंग टिप्स सेल कर रहे होते हैं, ड्रीम सेल कर रहे होते हैं। डोंट डू दैट, बी क्लियर विद योर मैसेजिंग कि आई स्टार्टेड एंड आई एम जस्ट 2 स्टेप अहेड। इफ यू, आप अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इट,
आई विल टीच यू, कम एंड बाय माई कोर्स, दैट्स इट। ऑनेस्ट रहो, ऑथेंटिक रहो, पीपल वुड फॉलो यू। उनको कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, आप अगर 2-3 स्टेप आगे हो और आप उनको चीज़ें बता सकते हो, दे विल पे यू, ताकि वो भी 2-3 स्टेप जहाँ पर आप आगे खड़े हैं वहाँ पर आ जाए। और अगर आप 6 महीने कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं तो आप 2-3 नहीं, आप तो शायद 7-8 कदम आगे हैं। सो आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। बस ऑथेंटिक रहो यार, ऑनेस्ट रहो, और लोगों को बेवकूफ़ मत बनाना। बस ये, क्योंकि एज ए सेट कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, कोर्स क्रिएटर्स के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वाई what things goes wrong in creating a course, how people get scammed in buying courses. So जब आप एक कोर्स क्रिएट करें तो उसको उसको लोग ये ना कहेंगे यार दिस मैन इज स्कैमिंग अस, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट कंप्लीट द कोर्स। तो कुछ इस तरीके का आपको सिस्टम क्रिएट करना है जिससे वो कंप्लीट करें इस कोर्स को। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो बनाई है, कितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे? अगर आप देख रहे हैं इट मीन्स यू रियली वांट टू लर्न। So I am happy and I am glad that you are watching this video by now. Now listen me out. When you create any course, be brutally honest with your message कि आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाए देन कंडीशन मेरी भी तो है ना इसी वीडियो में। इट्स काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स ऑन राइटिंग। कंडीशन क्या है कि यू हैव टू राइट फॉर 6 months daily and you will make a lot of money, and if you can't do that you wouldn't. So I have a condition I am guaranteeing. If you are fit with this guarantee, come and I'll make sure you will make money. Why I am no okay? You may ask Shishir that okay, so you are, तुमको ये वीडियो सुनने से ऐसे लग रहा है तुम्हारी चीज़ें कि तुम शायद 1-2 स्टेप आगे हो. So why you are not paying or selling a course? Reason is simple that number one, I don't have any audience. Number two, I think I would not want to sell courses this early. I really don't want to course. I really don't want to sell course. I want to create a community where we have our daily classes. So I'm right now I'm practicing coursing practices, which is really helpful by offering you one-on-one free services, how to build community, how to understand people. I'm in my learning phase. Even if I'll be in my earning phase, I will try and I will give everything away for free because I'm a huge fan of Alex Hermosi. And we all are in the जो भी है इस दुनिया में marketing and sales की, they are fan of Alex Hermosi, and I really want to follow and learning him and observing him carefully. So I'm trying to give away my content for free. I just want your time, your honesty, your commitment to this thing, because I want you to see messaging me or telling that you learned from this, you learned from here, you made your life better, and I was responsible in changing your life into a better life. I really want that. And I really want that for myself as well. Because right now I said I'm no expert, I'm also changing my life. I'm just offering you an opportunity to become the part of this journey and change your life too. One thing that I want to do is someday is creating a community. Of course, that community will be monetized. पर वो बहुत आगे की बात है. It's just a dream. Not a dream, it's just a goal which can be changed, I don't know, according to the changes in my behavior, in life, in market. A lot of factors are there, but हम इस चीज़ को बाद में कंसिडर करेंगे. But you have an idea now. Affiliate income. Now एफिलिएट इनकम आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ. एफिलिएट इनकम ये होता है कि जब आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर, फॉर एग्जांपल न्यूज़लेटर पर, अपने अकाउंट पर प्रमोट करते हैं, आपको कुछ पैसा मिलता है. सो जब आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे होंगे, पीपल वुड बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएंगे. अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं मेरे को उनके पास जाना है, सो यू कैन ऑलवेज कोल्ड DM देम, कोल्ड ईमेल देम. अच्छा, नाउ फ्रॉम हियर लर्न दिस थिंग कि जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, सो आप किसी का काम पसंद आ रहा है, अपने ट्विटर पे है, एक्स पे, लिंक्डइन पे, आप किसी को भी कमेंट पसंद आ रहा है, यू शुड कमेंट इट, और कमेंट करना ही है. दैट्स अ वे यू ग्रो. बस एक चीज़ याद रखना कि ऑनेस्टली कमेंट करना है, इसलिए नहीं करना है, वही इंटेंशन क्या होना चाहिए कि आपको सच में ही वो कंटेंट बहुत पसंद आया, उसका लिखा हुआ है. नाउ योर कमेंट शुड रिफ्लेक्ट दैट कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई, कि यू रोट इट दिस वेरी वेल, आई थिंक यू रियली नेल्ड इट, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लिखी है. तो इससे होगा क्या, इससे आप चमक के बाहर निकलेंगे कि हाँ यार, आप कमेंट करने के लिए नहीं कर रहे, ग्रो करने के लिए नहीं कर रहे, यू रियली केयर फॉर दैट पर्सन, यू रियली लव दैट कंटेंट. सो एक खुद से पूछो, डू आई रियली लव दिस पीस ऑफ राइटिंग, डिड आई गेट समथिंग टू लर्न. जब ये आंसर्स होंगे तो यही आंसर्स को लिख दो कि आई लर्न इट एंड आई रियली लव्ड इट एंड व्हाई आई लव्ड इट.
नाउ यू हैव अ गुड कमेंट, ऑलवेज डू इट. किसी का काम बहुत पसंद आता है, ऑलवेज कॉल DM, कुछ मांगो मत उनसे, जस्ट अप्रिशिएट देम, जस्ट इंगेज विद देम. दैट्स द वे कि आप उस कम्युनिटी में आओ, राइटर्स के साथ बात करो, उनका कंटेंट कंज्यूम करो, कमेंट करो, रीच करो, समझो, मांगो मत. डोंट आस्क टू अर्ली, build a connection, then ask. For example, just reply to their comments, show them that you really care for them, and show them नहीं, सच में केयर करनी होनी चाहिए अंदर से. Show them why you really like them, show them you are always, excited and happy to read their content. Build connections and then you can ask. And what kind of ask you can ask, वो होगा जैसे for example to teach you something, to tell you something, or to come on your podcast, these kind of things. Because I have also a podcast, so I think uh, I will be asking them to come on my podcast, because when they will come on my podcast, I will be able to learn more from them. So that's what I will do. So my friend, this was the video which you just watched, and I am glad अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, it means you really want to learn, my friend. So now, at last, my final thought is, you can do it, you will do it if you are really serious. Again, कंडीशन वही है, 6 महीने रोज़ लिखना है. 101 मेंटरशिप है फ्री में, ज्वाइन इट. न्यूज़लेटर है, सब्सक्राइब इट. मैं ये करने वाला हूँ, और मैं इस चीज़ को बहुत ऑनेस्टली दिखाऊंगा, बिकॉज इसी बात में, इसी मतलब एक तरीके से मान लीजिए शपथ ली थी दैट आई विल ऑलवेज शो माई फेलियर्स. मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कहा है दैट डोंट बी अफ्रेड टू शो योर फेलियर्स, इवन तो आई नो आई मे फेल, but I cannot fail if I don't quit. again, this thing is direct from Alex Ramosi. I am a student of Alex Ramosi, and this is something I keep with myself, that I can't lose because I don't quit. I won't quit. I will win. That's my final quote and my goal. Now, my goal is not just writing. Although my goal is just writing, right? I just messed it up. Listen me out again. What I mean is, I have a YouTube channel as well. I have a podcast as well. And now I'm going into writing, having a challenge. So I will show you my complete process, that how I create content, and how I am also going to be consistent in writing online. So what I do is, what's my process? I learn. Okay, I have a paper. I'm reading the paper because मेरे को अपना process ऐसे लिखा हुआ मैंने. You can see the paper. So my first thing is, what's my strategy? I learn. I learn the things, or I live my life. तो जब मैं लिव कर रहा होता हूँ, जी रहा होता हूँ अपनी ज़िंदगी, आसपास की जो चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ सीख रहा होता हूँ, उससे मुझे कुछ इनसाइट्स हमको मिलते हैं जब हम चीज़ सीख रहे होते हैं. जो इनसाइट मेरे को रियलाइज़ हो रहे होते हैं, उससे ही एक आइडिया जनरेट हो रहा होता है. वो आइडिया ही मेरे कंटेंट का आइडिया होता है. फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि अब मेरे को आई वांट टू लर्न हाउ टू राइट ऑनलाइन, लाइक मतलब जैसे लेजिटली अगर कोई बिगनर, मैं आई कंसीडर माई सेल्फ बिगनर, इवन तो आई हैव वर्क विद सम कॉपी राइटिंग क्लाइंट्स. मैंने कहा कि मैं बिगनर हूँ, बिगनर तरीके सीखूँ, हर चीज़ सीखी, समझी, और वो सबने आपके सामने पेश करी. कुछ चीज़ें मिस्टेक करूँगा, शायद इस वीडियो में कुछ चीज़ें मिस्टेकली बोलती हूँ, बट दैट्स हाउ द गेम इज प्लेड. यू डू मिस्टेक, you learn, and you win. So after that it converts into the idea, and after idea I think कि मैं इसको इंटरेस्टिंग कैसे कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. Why? मुझे लगता है कि आइडिया मेरे को बहुत एजुकेशनल एंड नी स्पेसिफिक कंटेंट होता है. मेरा आइडियाज़ वैसे आ रहे होते हैं. इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, कुछ ह्यूमर डालना, कॉमेडी डालना. इवन तो आई एम काइंड ऑफ इंटरटेनिंग पर्सन इन माई सर्कल, बट ऑनलाइन अभी मैं उस चीज़ को सीख नहीं पा रहा कि कैसे स्क्रिप्टिंग ऐसे करूँ, बिकॉज आई सक एट स्क्रिप्टिंग. यू कैन सी कि मैं फंबल करता हूँ, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ मैं बुलेट्स पॉइंट्स लिख रहा होता हूँ और बोल रहा होता हूँ. शुरुआत का जो हुक होता है उसको मैं स्क्रिप्ट करता हूँ, एडिट भी अच्छा करता हूँ. बाकी वीडियो उन्हीं के लिए होती है जो रियली सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बस सिखाने की कोशिश करता हूँ. आई सक एट स्क्रिप्टिंग एंड आई डोंट वांट स्क्रिप्ट. आई जस्ट लाइक टू डू दिस कंटेंट दिस वे, बट आई विल ट्राई टू मेक माई कंटेंट इन कमिंग डेज इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं खुद को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि मैं ऐसे ही करता हूँ. If you guys wanted some interesting or humorous part, I will try and I'll experiment. Then I'll structure the idea. That is also important. You have idea, तो वो raw idea होता है. उस raw idea में बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स को टच कर रहे होते हैं, तो बहुत ही स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जांपल राइटिंग है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें थी कि कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, इनके बारे में भी घंटों घंटों बात हो सकती है. बहुत कुछ है सिखाने को, सीखने को. लेकिन हमने भी इस वीडियो को बस
क्या है इस वीडियो का इंटेंशन कि आप 6 महीने के लिए लिखिए और पैसा बनाना शुरू करिए। 6 महीने में मैं आपके साथ हूँ, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, वी विल लर्न, और बीच में वीडियोस भी आती रहेंगी और 1-on-1 मेंटरशिप भी है। सो आई एम टोटली अकाउंटेबल टू यू, इट्स नॉट जस्ट अ वीडियो, it's a way that you can start learning and very soon start earning. देन मैं क्या करता हूँ, मैं ना बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ। अभी तक मेरा राइटिंग प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, लिसन मी आउट। मैं बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ और बुलेट पॉइंट्स लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई क्रिएट द वीडियो। बुलेट पॉइंट जैसे कि है क्या, मैंने अब इसके वीडियो अभी मैं जैसे शूट करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी शूटिंग चल रही है बिकॉज आई एम स्पीकिंग। सो ये वीडियो, फिर उसके बाद क्या होता है, एडिटिंग पार्ट को हटा देते हैं, क्या एडिटिंग वगैरह होती है, फिर अपलोड होती है। और क्रिएट द वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कि इसका थंबनेल बनाना, ये सब करना, टाइटल चूज़ करना, डिस्क्रिप्शन लिखना एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। हम उस पर नहीं जा रहे, क्रिएट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट विच इज़ द राइटिंग पार्ट। सो मेरा राइटिंग हमेशा पेन या पेपर से स्टार्ट नहीं होता, ये प्रोसेस फॉलो करके आ रहा होता है। उसके बाद जो मेरी वीडियो होती है, मैं उस वीडियो को सुनता हूँ बिकॉज राइट नाउ मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो थॉट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बस ये नेचुरली बोल रहा हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी निकल जाती है, एनालॉजीज अच्छी निकल जाती है, एग्जाम्पल्स अच्छे निकल जाते हैं, जो मैं लिखता हूँ तो नहीं निकलते। दिस इज़ माई वे। मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आई रीड माई ट्रांसक्रिप्ट एंड क्रिएट अ न्यूज़ लेटर विच वुड बी अ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल ये अब 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उससे ज़्यादा की होगी, तो एक बहुत लंबा न्यूज़ लेटर निकलेगा एंड आई अपलोड इट ऑन सबस्टैक। जैसे ही सबस्टैक पे वो अपलोड हो जाता है, आई राइट इट, उसके थ्रेड्स बना करके मैं उसको ट्विटर एक्स पे डाल देता हूँ, फिर वही लिंक्डइन पे पर्पस कर देता हूँ। अभी नहीं कर रहा हूँ असल में, स्ट्रैटेजी यही थी बट मैंने फॉलो नहीं करी। अब मैं मतलब इस तरीके से ही काम कर रहा हूँ, और शायद मैं रीपर्पज़ ना करूँ, मतलब कि लिंक्डइन पे शायद ना डालूँ, सिर्फ ट्विटर पे डालूँ, बिकॉज मुझे ना पर्सनली नहीं पसंद रीपर्पजिंग एंड आई हैव एक्सपेक्टेड इट। मैं रील्स ऑफकोर्स डाल रहा हूँ जो कि उसी वीडियोज़ में से होंगी, बट हम रील्स की बात नहीं करें, वीडियो की बात नहीं करें, मेन है सबस्टैक और उस पर कॉन्टेंट जा रहा होगा। सो दिस इज़ माई प्रोसेस ऑफ राइटिंग विथ, और उस प्रोसेस में पहले जो स्टेप है उसके अंदर मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, आइडिया आ रहा है, बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई थिंक कि जो मेरा अंदर का जो स्टाइल है, जो इनसाइट्स है, वो निकल करके बाहर आता है। बस एक चीज़ का जो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे बहुत नीश स्पेसिफिक होकर चलना है, बिकॉज आइडियाज़ जब मैं व्हेन आई लिव लाइफ, व्हेन वी लर्न डिफरेंट थिंग्स, वी लिसन डिफरेंट थिंग्स, वी लिव डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट सिचुएशंस। सो हम हर चीज़ के बारे में एकदम से बात नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे को बहुत ही देखना है कि नीश स्पेसिफिक कैसे मैं उनके लिए कंटेंट बनाऊँ हु रियली केयर। फॉर एग्जांपल माय यूट्यूब चैनल इज अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। सो एनी काइंड ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी, कुछ भी चीज़ है, इट ऑल स्टार्ट्स विद राइटिंग। यू आर सेलिंग समथिंग, इट स्टार्ट्स विद राइटिंग, ईमेल पेजेस एंड ऑल। You are speaking in front of camera, a lot of people, a lot of content creators follow scripts, so it starts with writing. You want to write online, you want to write carousels, it all starts with writing. So I thought this is the most important skill, this is the most foundational but powerful skill that everyone should know and learn. So I created this video. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, टू मेक योर लाइफ बेटर, एंड प्लीज़ गिव मी, मैं ऐसे आपको सर्व करता रहूँ, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई न्यूज़ लेटर एज वेल। थैंक यू सो मच।